I just want to tell you guys that I will try my best not to cry in today's video. Thinking कि ये चीज़ होने वाली है 6 महीने में, पर पता ही नहीं चला यार 6 महीने कब चलेगा। गेस नहीं कर पाए एंड जिनको मेरे स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको लग रहा था कि मैं प्रैंक कर रही हूँ, लाइक लिटरली बैठ जाओ नहीं तो तुम लोग झटके से गिर जाओगे। बिफोर आई टेल यू गाइज व्हाट इज माय सरप्राइज करियर, सिट डाउन, जस्ट सिट डाउन। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Angeline Dominic Roderick and you're watching She Beyond Your League. And on we'll go. So today is the day finally when I will be telling you guys that surprise career जो मैंने इतने टाइम से आप लोगों से छुपा के रखा था, and it is the day today. But before we start the video, I want you guys to like this video, also subscribe to my channel and leave a comment down below कि आपको ये पूरा जो सिनेरियो है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, मेरा पूरा करियर प्लान है, आप लोगों को कैसा लगता है और मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लगते हैं, because that really motivates me. So please do like and comment, ठीक है। सो आज के वीडियो में बहुत बकबक होने वाली। वैसे तो मैं नॉर्मली ही बहुत बकबक करती हूँ हर एक वीडियो में, लिटरली मेरे सारे रिलेटिव्स बोलते हैं कि मैं बहुत बकबक करती हूँ, कितनी बड़बड़ के लिए। ये वाला स्पेशली बकबक करने के लिए है बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ स्टोरी टाइम, प्लस आई एम गोइंग टू ओपन एंड रिवील द सरप्राइज करियर जो एकदम लाइक मिरेकुलसली हुआ मेरे लाइफ में। एंड ऑल्सो देयर विल बी अ स्मॉल लिटिल मोटिवेशनल स्पीच फॉर पीपल हु हैव जस्ट ग्रेजुएटेड और लाइक यू नो पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर करियर. So this will be for them too, a little bit of motivational speech. So guys, I don't know where to start from, but I just want to tell you guys that I will try my best not to cry in today's video, but I hope you guys understand where I'm coming from, and all the students who have just graduated or anyone who has now got a point in their life or had a point in their life where they have got such a big turn in their life and they have to make some sacrifices also in order to get there will understand where I'm coming from. So I am very emotional right now and also very happy, and I'm really confused between the two ki like मैं क्या feel करूँ, but like it's a time of mixed emotions. So yeah, here is the story. So like I wanted to do this particular job since I was in 12th standard, but my parents said no at that particular time because I had to complete my graduation. They wanted me to complete my graduation, finish my studies in order to afterwards know like what I really want to do. So उसके बाद I went in degree college और तभी मेरे को ज़्यादा कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ इसी सेम करियर के बारे में. Like I left the path of it and I was into something else too much, like you know very much into another plan for myself, and I wanted to do MBA and I wanted to go through I wanted to work with companies, I wanted to start my own business and stuff like that. But that time also a lot of my friends used to always tell me कि वो चीज़ जो भी मैं करने वाली हूँ वो ट्राई करने, एंड सेकंड थिंग they used to tell me बॉलीवुड में ट्राई करने. So these are the two things that people used to tell me because I was from a background, I am from a background where I'm a model, influencer and a blogger, so it suits my lifestyle a lot. So yeah, that is what people used to always suggest me, and तभी भी मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं. लाइक आई डोंट नो व्हाई, लाइक यू नो पूरे डिग्री कॉलेज में मैंने कभी ज़्यादा कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा. आफ्टर 12 लाइक आफ्टर 12 आई डिडंट एट ऑल, ये चीज़ मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी. तो एज आई टोल्ड यू गाइस दैट आई वांटेड टू डू MBA एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. लाइक आफ्टर वर्किंग फॉर कंपनीज, आफ्टर वर्किंग विद पीपल, आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, एंड दैट इज अंटिल नाउ माय लास्ट लाइक प्लान. आई हैव टू, आई स्टिल इवन आफ्टर डूइंग दिस जॉब आई स्टिल वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट बिजनेस वुमन काइंड ऑफ पर्सन. आई ऑलवेज वांटेड टू. When I went to my third year, then is when I realized कि MBA में इतना खर्चा होता है, and I'm not that kind of a child that will want my parents to spend so much on me. Like I'm not like I'm not telling you to you, but like for me it's not like that. I don't feel like as you grow up you feel that thing like होता है किसी किसी को, और मुझे है वैसी चीज़. What I feel is parents what they spend on you or are willing to spend on you should be on your needs, not on your wants. Like you shouldn't have that many like big wants from your parents because they have already done so much for you, and उसमें ज़्यादा खुशी नहीं मिलती यार जब like your parents are doing it for you, और like वो खुद की खुशी मेरे को अच्छा लगता है, खुद से लेकर खुद से कुछ अचीव कर वो खुशी मिलती है, वो मुझे अच्छा लगता है. So then is when I started thinking कि मैं जॉब करूँगी, सेव करूँगी पैसे, and I will start doing my MBA. Obviously some point of time I will have to like take help of my father or anything like that, but that help kind of thing is fine, but putting that whole इतना amount of pressure on my dad wasn't fine. So I thought I would work, I would do my job, and accordingly I would save money and do my MBA. But what I didn't know is, okay, I don't know where to like start this yaar. Okay, so this was my whole particular plan, ठीक है, जितना मुझे वो टाइम पे मेरे दिमाग में था जब तक मैं ग्रेजुएट हुई. सो मेरा ग्रेजुएशन ऑब्वियसली ये साल हुआ, ये साल कंप्लीट हुआ 2021 में, लाइक 2020 में कंप्लीट हो गया. एग्जाम रिजल्ट अभी निकला. सो मुझे नहीं पता था कि अभी निकला नहीं, ओ शिट इतना जल्दी टाइम निकल रहा. 2020 में ही निकला था रिजल्ट, बट आई गेस दिसंबर नवंबर ऐसा कुछ नहीं. सो तभी निकला रिजल्ट, एंड सो या ऑब्वियसली कोरोना की वजह से हमारे एग्जाम्स अफेक्ट हुए, रिजल्ट लेट निकला, एवरीथिंग लाइक दैट. एवरीवन अराउंड अस वाज सो स्ट्रेस इन द होल 2020. सो बेसिकली
यही चीज़ था मेरे दिमाग में कि ये होगा, एंड देन आई वाज वेटिंग ऑन माय रिजल्ट्स, ये वो, एंड एज सून एज दिस होल कोरोना वाला थिंग शांत हो जाता, बिकॉज माय डैड स्टार्टेड रेज्यूमिंग टू वर्क अगेन, एंड ही डिडंट वांट अस लाइक मी टू ऑब्वियसली स्टार्ट वर्किंग एट दैट पॉइंट, बिकॉज कोरोना का इतना इफेक्ट था, एंड यू नो हाउ डैड्स आर, सो ही डिडंट वांट मी टू स्टार्ट वर्किंग एट दैट पॉइंट, ही वांटेड मी टू बी सेफ, स्टिल वांटेड टू स्टार्ट वर्किंग। मैंने सोचा था कि मैं जनवरी से ही स्टार्ट कर दूँगी, यू नो स्टार्ट वर्किंग जैसे न्यू ईयर चालू हो जाता है तभी। बट देन what happened is I started my digital management course. Now obviously I have to do a job, right? So my degree, and obviously I wanted to do some courses, so I started with digital management course. मेरा वो भी पूरा हो चुका था, and I was like I was full set. So if you are graduated just now, और बहुत टाइम पहले अगर हुए रहेंगे शायद आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा, बट आपको बहुत सारे मैसेजेस आने चालू हो जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज के, कंप्यूटर कोर्सेज के, MBAs के, लाइक मैनी सच कोर्सेज, IIC के, आई डोंट नो, सो मैनी ऐसे कोर्सेज के लाइक यू नो मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं, एवरीथिंग, कॉल्स आने चालू हो जाते हैं, बच्चे लोग को भी एंड उनके पेरेंट्स को भी। सो वैसे ही मुझे बहुत आ रहे थे। एज सुन एज माई एग्जाम गॉट ओवर, तो नॉट ओनली लाइक मेरा जब रिजल्ट आया तभी नहीं, एज सुन एज माई एग्जाम्स गॉट ओवर तब से ही मैसेजेस आने चालू हो गए। तो वैसे ही मैसेजेस में मुझे एक मैसेज आया, एंड मेरी मॉम को एक मैसेज आया, बट मैंने वो मैसेज तब तक देखा नहीं था, बिकॉज मैं वैसे भी कंपनीज एंड ऑल के मैसेजेस नहीं देखती। मॉम ने वो मैसेज देखा, एंड मॉम वाज लाइक यू वांटेड टू डू दिस राइट इन 11th एंड 12th। आई वाज लाइक हाँ। तो शी वाज लाइक तो तूने सोचा नहीं? मैंने बोला नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया, लाइक मेरे पूरे डिग्री कॉलेज में आफ्टर 12th मेरे पूरा दिमाग से निकल गया था वो चीज़, एंड दैट वाज समथिंग आई वाज सो एक्साइटेड फॉर। सो आई वाज लाइक मेरे दिमाग से निकल गई वो चीज़, एंड देन मॉम वाज लाइक देख यहाँ पे लिखा है ऐसा ऐसा सेमिनार है कल एंड एवरीथिंग, सो यू वांट टू गो एंड ट्राई इट। सो आई सेड हाँ ठीक है, आई विल गो एंड आई विल अटेंड द सेमिनार। सो वो चीज़ हुई, और ये चीज़ हुई न्यू ईयर्स पे, ठीक है, सो गई उनके सेमिनार अटेंड किया। सो मैं गई एंड टू द इंस्टीट्यूट, दे वर रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड टू हैव मी, दे लाइक्ड माई हाइट, माई वेट, माई लुक्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और इससे ज़्यादा बोलूँगी तो आपको पता चल जाएगा, और आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, आई नो, बट आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज इट रियली सून एंड राइट नाउ। सो द career, the surprise career that I have chosen and brought a big turn into my life is cabin crew. Yes, this was the career that I wanted to choose in 12th standard, जो मैं 12th standard के बाद भी कर सकती थी, but then my parents said no, because I wanted to they wanted me to complete my graduation, my whole studies, and then look forward to what I want to do exactly. So yeah, cabin crew is the surprise career, and many of you guys were actually right. बहुत लोगों ने पहले ही गेस कर लिया था जिस दिन मैंने बताया कि मैं ब्रेसेस लगा रही हूँ एंड एवरीथिंग, जब भी मैंने हिंट दी बहुत लोगों ने पहले गेस कर लिया था। आई एम रियली सॉरी टू टेल यू गाइज लाइफ कि नहीं गलत है, वीडियो आएगा तो बता कर लेना, क्योंकि मेरे को सस्पेंस तो रखना ही था, राइट? लाइक इतना मजा थोड़ी ना आता, लाइक जस्ट इमेजिन ब्रेसेस वाले व्लॉग में कितना मजा आया, राइट? तो ये वाली वीडियो में भी तो मजा आना चाहिए था ना आप लोगों को। सो या इसके लिए इतना सरप्राइज रखा था। मेरे पेट में लिटरली बात नहीं टिकी, कितने सारे मेरे फ्रेंड लोग ने उगलवा लिया मेरे से, लिटरली इमोशनल अत्याचार करके उगलवा लिया। लिटरली व्हेन आई वाज टेलिंग देम कि लाइक नो दूसरे लाइक नो सबको पता चल जाएगा एंड ऑल, दे वर लाइक हम लोग क्या सबको है क्या एंड ऑल एवरीथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक इमोशनल अत्याचार कर रहे थे यार लिटरली। तो मेरे को बताना पड़ा कुछ लोगों के लिए मैंने स्ट्रेंथ रखी और मैंने फिर भी छुपाया, एंड आई ट्राइड, बट लाइक ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा हिंट्स दी थी, और एंडिंग में तो मैंने बता ही दिया कि आई एम गोइंग टू मूव एंड एवरीथिंग लाइक दैट, तो उससे भी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। सो दैट इज द करियर दैट आई हैव चोजन, कैबिन क्रू। और मुझे जिस इंस्टीट्यूट से मैसेज आया था, मुझे और मेरी मॉम को, दैट इंस्टीट्यूट इज फ्रैंकफिन, एंड वी गॉट द मैसेज। उसके सेमिनार के लिए मैं सेकंड डे गई, एंड आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू गाइस कि उस सेमिनार में क्या क्या हुआ। बेसिकली मैं उस सेमिनार के लिए गई, आई वेंट ओवर देयर, तैयार हुई, एवरीथिंग लाइक दैट, आई वेंट ओवर देयर, एंड तब तक बस मेरी मॉम और मुझे पता था, ठीक है, मैंने वेंट फॉर द सेमिनार एंड एवरीथिंग। सो आई वेंट एंड आई सैट फॉर द सेमिनार, दे शोड अस some videos related to cabin crew, related to their company. Then I went and spoke to a professor over there, a person who was talking to me and also is a professor. So they discussed with me and they told me ki, like, you know, everything about their company, everything about airlines. They gave me more knowledge and everything like that. I spoke to them. Then they told us like what all they'll be teaching, what all will be the courses, कितने टाइम का कोर्स रहेगा, क्या रहेगा, everything was explained to me. Also उसके बाद फिर उन्होंने चार्जेस लिख के दिए। They also checked my height, my weight, मेरा BMI check किया, which was normal. They even checked my skin, my features and everything like that. And each and everything के बाद they were like, wow बेटा, like your height is so good, touch wood, ये वो बहुत तारीफ कर रहे थे मेरी। And then afterwards we went inside after checking everything like that. We went inside, we spoke and everything, and then they were like, they asked me to remove my mask. और ये पूरे टाइम just keep in your head कि मैंने मास्क पहना हुआ था, ठीक है। सो सब कुछ चेक कर लिया, एवरीथिंग के, वो लाइक माशाल्लाह ये वो मेरी हाइट वाइट बहुत अच्छी है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। आफ्टर दैट आई रिमूव माई मास्क एंड दे टोल्ड मी टू स्माइल, एंड व्हेन आई स्माइल्ड दे सॉ माय टीथ। सो येस, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई हैड। इसकी वजह से मुझे ब्रेसेस लगवाने पड़े, बिकॉज दैट इज द ओनली प्रॉब्लम एंड अ मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज द टीथ रियली हैव टू बी अलाइंड इन दिस पर्टिकुलर सर्विस। सो या, so my teeth had to be aligned, which was not aligned. So बातों में they told a thing that they shouldn't have told, because they're working over there, and they were like, बेटा, like you, even if you go directly, फिर भी तुमको select कर लेंगे।
So the thing over here is that you can go separately, but the only reason why I went to Frankfurt is because I had a lot of time. ठीक है, अब मेरे को ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करना था. ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करने के लिए 6 महीने भी कम थे, बट हम बहुत जल्दी प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं. As I told you guys, for my braces treatment I'm going for a hybrid treatment. So that is getting my braces done and also there is invisible aligners that I'll be putting. So पहले 6 months के लिए I'll be putting braces, और जब मेरे interviews and everything like that start हो जाएंगे, I'll be putting invisible aligners. So even if they're there, they won't be seen, और मैं उनको remove भी कर सकती हूँ और वापस लगा भी सकती हूँ कभी भी. So these were the two things. So हम लोग ने मेरे नॉर्मली अगर मेरे दांत को ब्रेसेस लगवाना होता तो इट वुड टेक 1.5 years. ओनली प्रॉब्लम वाज माय टीथ एंड दिस बर्थमार्क दैट आई हैवंट वैक्स, बट इट वाज दिस बर्थमार्क दैट आई हैव, बट दिस इज कंसीलेबल. तो मुझे जब नेक्स्ट टाइम मैं जब आने वाली थी, उन्होंने मुझे बोला था ये कंसील करके लाइक नो यू हैव टू शो देम, सो लाइक दे नो दैट इट इज कंसीलेबल, एंड वो लोग मेरे फॉर्म पे लिख सकते हैं. पीपल हु हैव पास्ड 12 विल हैव अ कोर्स ऑफ 1 year. ठीक है, सो फॉर मी इट वाज 6 months, एंड नॉट ओनली यू नो हाइट वाइट एंड ऑल दिस, ये सारी चीज़ें नहीं देखते थे. इवन सी हाउ यू स्पीक, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश, एवरीथिंग लाइक दैट. आर यू कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू न्यू पीपल, और आप लोग तो मुझे जानते ही हो मैं किसी से भी बैठकर घंटों तक बात कर सकती हूँ लिटरली. सो या मैं जाते ही मैं इतनी चबर करने लगी, इतनी सारी बातें करने लगी, अपने सारे डाउट्स क्लियर करने लगी, उनसे बात करने लगी, इन्फॉर्मेशन लेने लगी. दे वर लाइक, वो चीज़ ना वो लोग ने पहले ही लिख दी थी, कॉन्फिडेंट टिक पहले ही टिक कर दिया था कॉन्फिडेंट के सामने मैं जाते ही. और वो हाइट वाइट वाली बाद में चीज़ बोलोगे, मेरे को पूछा तक नहीं, कुछ नहीं बोलोगे, वो पहले ही टिक कर दिया था. कम्युनिकेशन स्किल्स टिक कर दिया था. बेसिकली जो फ्रैंकफर्ट के चार्जेस होते हैं दैट भी 1,40,000 to 1,50,000 के बीच, एंड यू कैन पे दैट इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,000 डायरेक्टली टू फ्रैंकफर्ट. बट मेरा जो ये कोर्स है इट वॉज थ्रू NSDC. सो NSDC गवर्नमेंट के थ्रू था. सो गवर्नमेंट वॉज पेइंग 45,000 ऑफ माई होल कोर्स. सो दैट इंक्लूडेड बुक्स, यूनिफॉर्म, मैं मैंने लाइक दैट थिंग मुझे नहीं पता. सो ये बस थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स थे जो उन्होंने मेरे को दिए कि ये चीज़ का गवर्नमेंट पे करने वाली है. एंड बाकी की 90,000 इज वॉट वी हैव टू पुट थ्रू आवर पॉकेट्स, बट वी डोंट हैव टू पे लाइक 15,000 वैसा डायरेक्ट इतने बड़े अमाउंट्स का इंस्टॉलमेंट्स नहीं देना है. वी हैव अ स्टूडेंट लोन ऑप्शन. सो बिकॉज आई वॉज डूइंग इट फ्रॉम NSDC वाला, जो मेरे कोरोना इफेक्ट जो मेरे कोरोना के इफेक्ट की वजह से 2020 बोलना था, कोरोना 2020 के इफेक्ट की वजह से जो उनका स्कीम था उसके हिसाब से मैं स्टूडेंट लोन ले सकती थी, एंड उसके वजह से ही मैं बैंक के साथ बैंक के थ्रू पेमेंट्स कर सकती थी. बट व्हेन यू गो नॉर्मली फ्रैंकफर्ट में यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू पे 15,000 के इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली टू फ्रैंकफर्ट. तो मैंने स्टूडेंट लोन लिया, एंड दैट वे हाउ आई वांट टू पे. दैट वाज अ रियली गुड स्कीम दैट आई गॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आई वेंट ऑन 30th and 31st ऐसे टाइम पे. सो वो टाइम पे मैंने एडमिशन लिया, तो दैट वाज अ रियली गुड स्कीम दैट आई गॉट ड्यूरिंग 2020. एंड या उसके वजह से भी, एंड बिकॉज ऑफ माई ब्रेसेस ट्रीटमेंट मैंने फ्रैंकफर्ट में एडमिशन लिया, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली चली जाती और मैं सिलेक्ट भी हो जाती. सो द मेन रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू फ्रैंकफर्ट इज बिकॉज दे गिव यू प्लेसमेंट्स विद बिग एयरलाइंस, एंड आई एम डेफिनेटली एमिंग ऑन अ बिग एयरलाइन एंड इंटरनेशनल एयरलाइन. सो दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू फ्रैंकफर्ट. Second important thing is that if you want to join an international airline, you really need to have a swimming certification, because swimming is really important for an international airline. So that is what Frankfurt also provides you with. They give you the swimming training and also swimming certification. I tell you guys कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इट्स नॉट लाइक मैंने अगर फ्रैंकफर्ट से कोर्स किया है तो फ्रैंकफर्ट का सर्टिफिकेट वो लोग देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड व्हेन यू गोइंग फॉर द इंटरव्यू. कोई सर्टिफिकेट देखते नहीं है, ठीक है. सो इफ यू गोइंग फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि इफ गोइंग डायरेक्टली और कोई फ्रैंकफर्ट का स्टूडेंट है आपके साथ, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे और फ्रैंकफर्ट के स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट कि कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देखते. ऑल दे सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. आप लोग बोलोगे कि सर्टिफिकेशन नहीं देखते इंटरव्यूज में, तो तुम फ्रैंकफर्ट के थ्रू क्यों जा रही हो? लाइक व्हाई आर यू डूइंग द कोर्स फ्रॉम फ्रैंकफर्ट? आई एम डूइंग द कोर्स बिकॉज मेरा जो प्लेसमेंट होने वाला है, जो प्लेसमेंट्स वो लोग करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू हैपन थ्रू फ्रैंकफर्ट ओनली, ठीक है. सो फ्रैंकफर्ट के कंपनी वाले फ्रैंकफर्ट में ही आएंगे प्लेसमेंट्स के लिए. अदर थिंग इज दैट इंटरनेशनल एयरलाइंस इज नॉट दैट ईजी टू गेट इनटू जितना ईजी इंडियन एयरलाइंस है टू गेट इनटू, ठीक है. इंटरनेशनल एयरलाइंस के इतने ज़्यादा डायरेक्ट इंटरव्यूज नहीं होते जितने इंडियन एयरलाइंस के होते हैं. सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू गो थ्रू फ्रैंकफर्ट. सो दैट वाज इट. अगर आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रैंकफर्ट के रिगार्डिंग, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, आपको और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इन डेप्थ अबाउट माई होल एक्सपीरियंस, बिकॉज अभी मुझे 3 महीने हो चुके हैं फ्रैंकफर्ट के साथ कोर्स करते हुए, एंड इज गोइंग अमेजिंग. सो आई विल लेट यू गाइज नो इन द नेक्स्ट वीडियो. यू ऑल कैन लीव योर क्वारीज डाउन बिलो. ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग, कमिंग बैक टू द स्टोरी टाइम, मेरा जो पर्सनल स्टोरी टाइम था उसके बाद क्या हुआ. तो सेमिनार के बाद मैंने सोचा, बहुत सोचा, ठीक है. वाज लाइक येस आई वांट टू डू इट. सो बेसिकली लाइक मैंने बहुत सोचा, एंड देन वाज लाइक नहीं यार करना है, बिकॉज दिस विल लाइक लिटरली कंप्लीट ऑल माई ड्रीम्स. पर सबसे ज़्यादा मेरा मेन ड्रीम जो है दैट इज ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड, एंड दैट विल बी कंप्लीटेड बाय दिस. तो मैं जितना भी, अगर मैं अपनी जॉब कर लूँ, MBA कर लूँ, अपना बिजनेस चला लूँ, जो भी कर लूँ, अगर मैं ट्रैवल करने के लिए टाइम निकाल भी सकूँ, तो आई बी एबल टू लाइक गो ओनली वंस इन अ ईयर और समथिंग लाइक दैट. वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर. ये टाइम बस थोड़ा थोड़ा मिलेगा टू रोम सम ऑफ द कंट्रीज वंस और ट्वाइस इन अ ईयर. बट दैट इज नॉट what I want. When I say I want to travel the world, I want to keep traveling the world, and that would be only possible if I would be a cabin crew. So that is why I chose this, and that is why I have chosen this, and yeah, that is why I'm doing this. That's my main dream. And also I
always wanted to make travel vlogs. That is the second thing. My other all dreams are also getting completed. बहुत सारे travel vlogs आएंगे मेरे channel पे. Finally that travel वाला thing जो हमेशा से रहा है वो complete हो जाएगा. Accordingly उनकी पहली training होती है, उसके बाद ही they get the wings to fly and then they'll start flying for the company. They get selected and उनकी training होगी वापस. Even though I'll be doing the training in Frankfurt, after getting selected भी मेरे company के through training होगी and then मेरे accordingly exam होंगी and then I'll be selected. And so why am I so international oriented is because my main aim and my institute's aim for me is to be in an international airline and to be selected by an international airline. So that is because when I first went in, they checked my height, weight and everything. Height is 5.2, that is 158 centimeters, and which is perfect for an international airlines because international airlines में select होने के लिए your height should be 156 centimeters and above. So my height is 158 centimeters, so that was really good. And then they checked my, like, you know, they saw my personality, my communication skills and everything like that, and they were like, you would be perfect and you have a really good chance to get selected in an international airlines. और जो उन्होंने by mistake ये बात बोली थी कि अगर आप डायरेक्टली भी जाओगे तो आप select हो जाओगे, that was also for international airlines. So this is why it was a really big opportunity for me because even my airlines is planning to push me for the international ones, and in their batch there are around 10 to 20 students like that जो like you know international के लिए वो लोग उनको तैयार कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं, and I'm one of those. National और Indian Airlines के pros and cons मैं कभी और किसी और वीडियो में बनाऊंगी. I would like to work for any of them, but my main aim is international airlines. Like obviously सबका ही होता है. So yeah, I love my country and everything, but obviously I want to roam the whole world, and that's why I prefer international airlines. Now getting back to my story time कि सेमिनार के बाद क्या हुआ. As I came out of the institute, I came out and मैंने फटाक से मम्मा को कॉल लगाया and I was like सब कुछ बड़ चालू हुई थी, everything like that was going on. I was telling मम्मा कि क्या क्या उन्होंने बोला, क्या क्या होता है, क्या क्या एक्सप्लेन किया, सब कुछ एक्सप्लेन किया. And I was so excited. And उसके बाद then I was like हाँ मम्मा करना है ये, like मैंने बहुत सोचा and I was like नहीं करना है, like literally करना है. And yeah, I told मम्मा that, and I even told मम्मा कि मैं घर पे आने तक पापा को बताना नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा क्या कि यू नो दिस वाज अ सडन थिंग फॉर अस, ठीक है, और पापा को तो शॉक ही लग जाएगा क्योंकि पापा को इस चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं था. आफ्टर 12th ही डिडंट इवन हैव द आइडिया. वी बोथ विल कम, आई कम होम एंड देन वी टॉक टू पापा, क्योंकि मेरे को लगा पापा लोग कैसे रहते हैं, यू नो, सो यू नीड टू एक्सप्लेन योर डैड अ लॉट एंड लिटरली फॉर योर करियर वाइज, यू नो, एंड डैड बी लाइक आर यू श्योर लाइक दिस इज योर समथिंग दैट यू वांट टू डू फॉर योर लाइफ टाइम, सो एंड ऑल दीस थिंग्स, यू नो. मुझे पता था कि पापा से बात करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मुझे ये सब कुछ लगा था कि बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बहुत बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 12th के बाद पापा के भी दिमाग में वो चीज़ थी नहीं, लेकिन नो, बिकॉज मैंने बोला था मुझे MBA करना है, ठीक है. अब उस वाली बात पे मैं आ रही हूँ बाद में, ये बहुत बड़ा वाला जोक हो गया. सो आई टोल्ड माई मॉम नॉट टू से, ठीक है, एंड आई वाज लाइक मैं हम लोग घर पे जाएंगे फिर बात कर लूँगी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो मैंने फ़ोन रख दिया. मैंने मम्मा को फिर भी बोला वापस, मैंने मम्मा को वांट किया कि मैं मम्मा को जानती हूँ, एंड यू नो मम्मा. सो या आई वांट हर अगेन, आई सेड डोंट. एंड फ़ोन रखा, अपना आराम से गाने वाने सुन रही थी, सब इमेजिन कर रही थी, खुश हो रही थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड देन व्हेन आई लाइक इन द मिडल ओनली आई गॉट कॉल फ्रॉम मम्मा अगेन एंड आई वाज लाइक कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है. So I pick up the phone, or my mom, being my mom, told my father, and she was like, "Papa वो बात के लिए मी and पापा मान गए, ठीक है." And I was like, "Really?" I was like, बिना कुछ ज़्यादा बात किए पापा मान गए. And my mom was like, "हाँ." I spoke to him and all I told him that you want to go for cabin crew and everything like that. And my father was like, she wants to do that. Is she sure and everything? But उसको MBA करना था and all this, ये सब उनके बीच में बात हुई. And my mom was like, हाँ वो मान गए, मैंने बात की उनसे. And he was like, okay. I was like, okay, ठीक है. I didn't expect I didn't expect it that fast. मेरे को लगा कि हम लोग घर पे जाऊँगी, बात करेंगे एंड एवरीथिंग. फिर पापा लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कितने सारे. अभी दैट रिक्शा आई वेंट इनटू टीयर्स, आई वाज क्राइंग. आई डिडंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू हैपन सो फास्ट एंड सो यू नो सच अ बिग टर्न टू कम इनटू माय लाइफ सो सडनली. एंड माय पेरेंट्स टू बी सो सपोर्टिंग मी, लाइक यू नो, एकदम तक से एंड बीइंग सो सपोर्टिव एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सॉ मी इन 2020, they saw the whole world in 2020 and they were like, yes, like whatever you want to do, you do and you be happy, like, you know. So if you're someone that thinks that your parents don't understand, or people who love or they love you don't understand, and you really want them to understand that what you want to do, what you have to do and everything like that, just know this, that they will eventually understand someday. Yes, they will understand. They will know. Just communicate with them, just talk to them. Like at last, they are the people that love you and they're the people you love, so they will understand. And literally, I'm telling you guys, this was told to me by someone that was not that good in communicating, but still that person told me that you talk to your parents, they will understand. At last, they're your parents. So yeah, that is what I did the whole 2020. I was speaking to my parents. I was telling them that this is the thing that I want to do, this is the thing that I want to do. Like literally, you have to communicate before taking any drastic step. Like don't take any drastic step. Keep trying, keep communicating. Don't नहीं, कुछ नहीं होने वाला वो सब चीज़ों से. लिटरली टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू पीपल दैट यू लव, यू वांट देम टू अंडरस्टैंड. टॉक टू देम, कम्युनिकेट विद देम. आई एम टेलिंग यू, लाइक विद माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, they will understand. There will be a day when everyone will understand, ठीक है. Where you're coming from, I understand. कि like you know there are so many girls, like even my model students and so many of my friends who say कि how did your parents, like you know, how did your parents manufy for this thing? That is just my language. So how did your parents, like you know, get convinced for going to abroad? And I was like, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. Like literally मैं खुद शॉक, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा उनको, like you know, convince करने के लिए. मैं literally बहुत शॉक.
and they were like, seriously dude, like that was literally a miracle in my life. I don't know if you guys are religious or no, but I really want to tell you guys, this is the first ever miracle that happened personally in my life. Otherwise, like this whole thing, not only my parents understanding like straight away, but this whole particular thing, like whole thing. Otherwise, जितने भी miracles हुए हैं मेरी life में, it's because it happened to my parents, like you know, मेरी family में हुआ है ऐसा. But this was the first ever miracle that happened in my life, and I want to tell you guys, like if you're not religious, believe in yourself. Okay, you can do it. There is your timing. There is something that is planned for you. It will happen on your time. So if you're someone that is looking forward to join an airline or is looking forward to work in aviation, hospitality, go for it. I hope this video was kind of helpful for you guys because I didn't give much of information. This was mainly my story time कि मेरे इसमें क्या हुआ. And yeah, I will be अभी 6 महीने थे मेरे कोर्स का, 3 महीने हो चुके हैं, बाकी है बस अभी 3 और महीने बाकी है बस. एंड या उसके बाद आई बी लिविंग इन जून. सो बेसिकली वहाँ पर भी जब मैं जाऊँगी, सो मेनली आई एम एमिंग फॉर वन इंटरनेशनल एयरलाइन दैट आई लाइक अ लॉट, बट मैं उस एयरलाइन का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती. सो हाउ इट वर्क्स इज दैट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग फॉर एन इंडियन एयरलाइन, माई बेस विल नेवर बी मुंबई. लाइक very rarely it will be Mumbai if I'm from Mumbai. ठीक है, so it will be very rarely from Mumbai. It will mostly be Hyderabad, Kochi and all these places, but it will not directly be Mumbai. ठीक है, so that is one thing that you have to keep in mind. So अभी when people का सबसे पहला question मेरे लिए ये था कि where are you moving? So if I tell you guys the answer to this, you guys will be shocked. ठीक है, and the answer is that I don't know, because I don't know मैं कौन से एयरलाइंस में सिलेक्ट होंगी. ठीक है, आफ्टर माई होल इंटरव्यू बीइंग डन, आई डोंट नो टू विच कंट्री और सिटी आई बी मूविंग टू, बट मेनली आई एम प्लानिंग टू मूव टू कंट्री ओनली बिकॉज आई वांट टू वर्क इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन. और वो एक ही इंटरनेशनल एयरलाइन है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बट आई वोंट बी डिस्क्लोजिंग इट्स नेम नाउ बिकॉज आई वांट टू कीप इट अ सरप्राइज. एंड दैट्स अ रियली बिग एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क फॉर दैट एयरलाइन. आई लव्ड इट, लाइक आई रिसर्च्ड ऑन इट एंड एवरीथिंग. आई लव इट. I took a lot of information from people. So I want to work for that airline, but I won't be disclosing it yet. And yeah, so I will be moving in 3 months. That will be in June. So June में I'll be moving. मेरी training होगी and training will be for like more 3-4 months. And उसके बाद exam and all होगा. And then is when I'll get the days to fly. So then is when I'll start flying. So जो मेरी training and all भी होगी, that will also happen in the base area of the particular airline. Okay, the base of that particular airline. So suppose I am in Mumbai. It's an Indian airline and my base is Mumbai, जो बहुत rarely होता है. So that is my base. Mumbai will be my base, or Hyderabad will be my base. Give you a country वाला example. So if I am working for Etihad Airlines, so my base will be Abu Dhabi. ठीक है, and if I am working for Qatar also, my base will be Abu Dhabi. So that is how it works. If it's Singapore Airlines, my base will be Singapore. So that is how it works. So if I get selected by any of the airlines, I will be going to the base to be staying. I'll be staying in their base in an accommodation, and everything will go on from there. So yeah, there is where I'm moving. I don't have any idea right now, but I will have an idea once my interview is over. So yeah, wish me luck, keep me in your prayers guys. And yeah, it's a very emotional moment for us, but मेरी family में कोई भी emotions नहीं दिखा रहा. Like literally no one is like crying. Everyone is hiding their emotions right now. सब 1 महीने पहले तक निकलेगा, 1 महीने के पहले निकलेगा. And also मेरे friends अभी जो जिनको झटका लगा है, एंड माई फ्रेंड्स जिनको मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स पता नहीं, आई एम प्रैंकिंग दैट. ठीक है, लाइक इट्स फेयर, लाइक आई डू प्रैंकिंग दैट. ऐसा प्रैंक मैं कर सकती हूँ और मैंने बहुत किया है स्कूल टाइम से, बट दिस वॉज नॉट अ प्रैंक. मैं बोल के थक गई और तुम लोगों ने आधा टाइम वेस्ट कर दिया. लाइक लिटरली दिस वॉज इन द प्रैंक. आई होप ये वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे. माई फैमिली वॉचेज दिस वीडियो, एवरीवन वॉचेज दिस वीडियो. माई फैमिली राइट नाउ इन एट माई प्लेस. इट्स 11:30 इन द नाइट. सो या, एंड माई बुक्स, तो मैंने बताया था मेरे को ज़रा भी बोलना नहीं, और जिनको ज़रा भी मैंने जिनको झूठ बोला और मैंने उनको नहीं बताया, आई एम रियली सॉरी, और आई एम रियली वेरी सॉरी. लाइक आई विल मेक इट अप टू यू. एंड या, सो मैं सोच रही थी मेरे सारे फ्रेंड्स को 1 महीने पहले मिलने. ठीक है, मैं जाने से 1 महीने पहले मिलने, बट देन आई वाज लाइक 1 महीने पहले टाइम ही नहीं मिलेगा. लाइक लिटरली इंटरव्यूज रहेंगे, प्लेसमेंट्स रहेगा, एवरीथिंग लाइक दैट विल बी देयर. मेरे मूविंग की तैयारी होगी, पैकिंग होगी, शॉपिंग होगी, ये सारी चीज़ें होंगी. लाइक I won't get the time to do this. Like you know, मेरी एग्जाम्स होंगी, everything like that will be. Then I won't get the time to meet anyone. like उतना टाइम नहीं मिलेगा. एग्जाम्स एंड इंटरव्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स में मैं बहुत टेंशन लेती हूँ. लाइक कसम से बिना फालतू कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ. लाइक इफ यू गाइस नो मी, यू नो दिस. आई टेक अ लॉट ऑफ टेंशन, लाइक लिटरली अ लॉट ऑफ टेंशन. नहीं होगा वैसे. So that's the reason I spoke to my friends and I told them to meet me at least 2 months before. So everyone is rescheduling, and 2 of my friends are coming from Delhi, one is coming from Jaipur to meet me, and accordingly we are planning. And if I've missed texting you, text me. I'm really sorry, I might have been missed. Text me and we will plan a date and meet. So 2-3 महीने पहले से ही मिलना. एंड अगर बहुत टाइम तक हमें वार्तालाप करना है तो 2-3 महीने पहले ही मिलना, अभी से मिलना चालू कर देंगे. बट अगर सी ऑफ करना है ऑब्वियसली, तो सी ऑफ करने के लिए तो वो उसी दिन पे आप आ सकते हो. यू कैन कम. सो देयर आर सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर लाइक इमोशनली टोल्ड मी ऑन द कॉल. दे वर क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे वर लाइक मत जाओ. एंड आई वाज लाइक ऐसे ना जाओ. लाइक दिस इज सच अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, सच अ बिग करियर फॉर मी. You have to be supportive guys. Like you have to be really supportive and encouraging at this point. You have to be happy for me. Yeah, obviously बहुत कम बातें होंगी, जितनी पहली होती थी उतनी नहीं होंगी, उतना मिल नहीं पाऊंगी शायद साल में बस 1 बार. So coming to the emotional part, yes, happiness में yes I will
बी लिविंग माई ड्रीम. आई डिडंट थिंक कि मुझे पता था कि ये सब कुछ मेरी लाइफ में होगा, बट मुझे नहीं पता था कि ये इतने जल्दी होगा. आई एम जस्ट 21, जस्ट ग्रेजुएटेड, एंड आई डिडंट इवन हैव द आइडिया दैट इतने जल्दी होगा ये सब कुछ. बट या, आई एम इंडिपेंडेंट इनफ टू हैंडल ऑल दिस, एंड इवन माई फैमिली नोज दैट बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस सिंस 6th standard. बहुत छोटी थी तब से आई डू टेक केयर ऑफ माई हाउस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. आई नो हाउ टू कुक फूड एंड एवरीथिंग लाइक दैट. माई पेरेंट्स व्हेनेवर दे थॉट मी टू मेक फूड, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ लाइक शादी करनी पड़ेगी एंड ऑल दैट एंड वैसा सब नॉनसेंस के लिए नहीं कभी को सिखाया. ऑल दे थॉट मी टू गो टू कुक एंड एवरीथिंग लाइक दैट वाज फॉर इफ आई गो फॉर वर्किंग समवेयर, और इफ आई गो टू अ हॉस्टल और समथिंग, लाइक हाउ विल यू कुक फॉर योरसेल्फ, हाउ विल यू सर्वाइव, लाइक तो उसलिए मुझे कुकिंग सिखाया एंड आई एम रियली गुड कुक नाउ. सो या, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड मी फॉर दिस, लाइक दे हैव ऑलवेज प्रिपेयर्ड मी फॉर एवरीथिंग. सो या, आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड या, आई एम डूइंग दिस एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे सडनली इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही है. मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, लाइक लिटरली. Like yes, I was partly completing my dreams of my modeling, of my vlogging and everything like that, but this whole cabin crew career will give a complete different turn to all of my dreams. I'll be able to travel, I'll be able to complete my these dreams. I will be having a lot more time than I would usually have for modeling, for vlogging, for being an influencer and everything like that. So yeah, I'm really happy. I will be finally be able to be independent. I'll have my own responsibilities, I'll have my own house, my accommodation obviously. I will be learning to live alone and yeah, all these things. But इमोशनल पार्ट के लिए आई विल बी लिविंग अलोन विदाउट माई पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. जो मैं अकेले इवन इन अदर रूम में नहीं रहती, ठीक है. लाइक वी हैव 2 rooms, one is for me and my brother and my mom and dad. So I never sleep alone, like we never sleep apart, and I cannot sleep without my mom and dad and everyone, मुझे अच्छा लगता है सब लोग के साथ सोना. सो मैं लिटरली गद्दा नीचे बिछा के वापस सोती हूँ. आई डोंट स्लीप इन माय रूम. इट्स रियली गोइंग टू बी वेरी नॉट गुड. I don't know how to feel right now, but I am so confused. I know I'm looking in the Rudar, but I hope you guys understand how I'm feeling right now. And I hope you, like people who have been through this or are going through this, really will relate to this. And yeah, it's happening so early. Like I didn't even expect all of this. Like yeah, I knew someday it would happen. God would answer to my prayers, but not so early. I didn't expect it, and I'm so thankful to Him for literally getting this whole change in my life, getting this whole opportunity in front of me. I'm just like waiting, But there are so many sacrifices also with it. I won't be able to be with my family. I won't be able to stay with them. I won't be able to go to every family function and be with them, enjoy my all family functions. I will be alone in every city or every country, and that will be completely new for me and very difficult for me. I don't know how I'm going to sleep alone. Oh my god, I literally it takes a lot of time, it takes a lot of practice to do that. बहुत time लगता है. You can even be homesick for a long time. बहुत कुछ है बहुत कुछ आने वाला है. एंड या, तुम लोग के लिए भी बहुत कुछ आने वाला है. I'm going to get a lot of vlogs, moving vlogs. Obviously I'm a creator. मैं content हर एक चीज़ से खींच के निकालूंगी. So yeah, a lot of moving vlog will be there, the shopping vlog will be there, everything will be there. So yeah, my brother will be giving my mom keys, hug me, and I'll be only on the video call. As I told you guys, big opportunities comes with big sacrifices. That's life. उस दिन रिक्शा में भी जब बैठी थी, सब कुछ वापस आ रही थी सेमिनार से, एंड सब कुछ लाइक इमेजिन करके जब मेरी मॉम ने मेरे को बताया कि इसको डैड also like was okay with it and was like happy for me and everything. I was in tears, I was crying, I was imagining all of this and thinking कि ये चीज़ होने वाली है 6 महीने में, पर पता ही नहीं चला यार 6 महीने कब चलेगा literally, and it's already just 3 months left more and the time is so near. I don't know how to feel guys, and yeah, I am very very happy, but I'm very emotional too, to leave my family, to leave my close ones, to leave my friends. It is hard, it's very hard, but yeah, I'm strong enough to go with it and for it. So yeah, it's life, we have to do it, right? मैं 6 महीने से सबसे छुपा रही हूँ, अकेले अंदर रखा है अपने. Obviously my family and only me knew, and like my whole family knows and only me knew. I didn't tell any of my friends. इतना मेरे पेट में थी ये बात, मेरे को बतानी थी सब लोग से. And also I wanted to spend more time with them, but मुझे initial stage में नहीं बताना था जब वो सब कुछ start हुआ था, because yeah, obviously you don't tell anything. like कुछ अच्छा होता है तो starting में नहीं बता देते सब लोग को. That is one thing. So my parents told me what to tell everyone. So yeah, that's the reason I'm saying it after 3 months now. Literally my family is being so strong and so happy for me. Like you have to be happy for me. Like even if I'm far from you, I will be making my life. So that is what is my family thinking too. So they are being really happy and really supportive. At least 3 महीने तो है, मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, एंड या सब कुछ होगा. वीडियो कॉल तो है ही नहीं, डोंट वरी. जब भी इंडिया आऊँगी वापस या जब भी मुंबई आऊँगी वापस, 101% आप लोगों से मिलूँगी. So guys, that's it for the video, and I want to tell my close family members and friends. Family को तो सब लोग को पहले से ही पता था, but friends, I really want to tell you guys, take this whole thing positively. I understand you'll be upset, you'll be emotional, but just take all this positively and encourage me, be with me. I need you guys at this time. You guys to be encouraging and understanding. I want you all to give me all happy vibes when I'm with you all. I understand it's emotional, I understand, but still guys, I want you all to be happy, keep me happy and enjoy the moment and the time we
are going to spend with each other in these 3 months. So guys, if you guys like this video, don't forget to give this video a thumbs up. Also comment down below कि आपका कौन सा वो magical moment रहा है और a big turn in your life has been. Don't forget to subscribe and come back in my next video. Bye.